स्पीकर महोदया। To the winter session of the Youth Parliament. Hope the session would be a very fruitful one as we sit down with the deliberate the important matters concerning the nation. Today's first business is the oath taking. Secretary General, please. Srimati Megha Bhaskar, who is get selected from the Jodhpur constituency of Rajasthan, will now take the oath of affirmation. Srimati Megha Bhaskar, please. Take the oath. अहम मेधा भास्कर यह लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः यस्मिन् ईश्वरस्य नाम्ना शपेत् यत् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्णां रक्षयामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यत अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। Madam, what would you like to take? The oath or affirmation? Affirmation. In which language would you like to take the affirmation? English. Having been elected a member of Indore House of the Youth Parliament, to swear the name of God that I will care truthfulness and allegiance to the Constitution of India as by laws. I will support the sovereignty and integrity of India and I will take full discharge of duty upon that I have written. From the Bhagalpur constituency of Bihar, will now take the oath for affirmation. Shriman Rahul Srivastava, please. Sir, what would you like to take? The oath or affirmation? In which language would you like to take the oath? मैं राहुल श्रीवास्तव युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं देश की एकता बनाए रखूंगा तथा मैं जिस पद को ग्रहण करूंगा उसका निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। Honorable members, as we meet today the demise of our ex-MP Shri Hafiz Mohammed Siddiqui. He was a committed social and political worker. He played a prominent role in the upliftment of the people of Lakshmi and in setting up various educational institutions and was the president of various social organizations. He passed away on 1st January 2025 at the age of 52. Honorable Prime Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप एवं सदन के सभी नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने गोपनीय शामिल करना चाहती हूँ। श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी एक निष्ठावान नेता थे, सुधारक के साथ साथ एक अच्छे शिक्षाविद भी थे। उनके द्वारा नशा उन्मूलन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किए गए कार्य उल्लेखनीय हैं। मैं उनके अकस्मिक मृत्यु से बहुत विचलित महसूस कर रही हूँ। माननीय महोदया, मैं शोक संतप्त परिवार में अपनी संवेदनाएं प्रेषित करने में स्वयं को और अपने दल को संयोजित करना चाहती हूँ। Opposition Minister, please. He was an active social worker and to be a person who used to perform his duty with most responsibility and devotion. ही एक दलित और पीड़ित परिवार से गरीबों के दर्द को यूं ही समझ पाते थे। शायद इसीलिए उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय गरीबों की तरक्की के लिए अर्पित कर दिया। महोदय, आप पूरी समिति की ओर से इसके साथ के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। Now, the House will stand in silence for a short while as a mark of respect to the demise.
नेता पर सुलाकर कैसे नींद आ जाती है इस देश के प्रधान को। मैं ही नहीं, ये पक्ष, ये विपक्ष, यहाँ तक कि ये पूरा देश जानना चाहता है कि किसानों की आत्महत्याओं को रोकने व उनके आय को बढ़ाने के लिए आपकी सरकार भविष्य में क्या योजनाएं बना रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्लीज। मैं आपके द्वारा सदन को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार किसानों के विकास और उनकी आत्महत्या रोकने के लिए अनेक प्रभावी योजनाएं लागू करने जा रही है। किसानों के लिए उत्तम किस्म के बीज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, सिंचाई के लिए टैंक के घेरे बनवाए गए हैं। हर वर्ष किसानों के खाते में 6,000 सम्मान निधि के रूप में ट्रांसफर किए जाते हैं। हमारी सरकार किसानों और पूर्ण देश के भविष्य के लिए अनेक योजनाएं लागू करने जा रही है। Question number 50, Ms. Rakshita. Ma'am, through you, I want to ask from the Minister of Food Ministry that majority of section in our country is not getting 2 square meal a day, and people of Aristocrat section make large quantity of food prepared to show off their standards, and then dump the leftover food in dustbin next day. If it is wrong, then what the concerned ministry is doing in this regard? Ministry of Food and Public Distribution, please. Ma'am, through you, I want to inform the House. Yes, we know that this is the true problem of India, but we done a lot in this direction and still we are doing for ensuring availability of food and to the ground schemes are Deen Dayal Antyodaya Yojana, Mid-Day Meal Scheme and Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana for curbing and halting wastage of food. Indian Food Sharing Alliance Compulsory Food Waste Reduction Bill 2018 Food Tech India. Thank you. Question number 90, Ms. धन्यवाद महोदया। मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि भारत में प्रत्येक वर्ष सड़क हादसों से 1 लाख लोगों की मौत हो जाती है और 7.5 लाख लोग विकलांग हो जाते हैं। आगे इसका क्या कारण है? यह क्यों नहीं रुक रहा है? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी प्रश्न पूछना चाहती हूँ इसमें फ्रेम हमारे भारत में सड़कें कब तक गड्ढा मुक्त होंगी और इस समस्या के लिए उन्होंने क्या समाधान सोचा है? धन्यवाद। Ministry of Road Transport. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सड़क सुरक्षा पर माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मैं आप सभी को अवगत करवा देना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में बहुत गंभीर है तथा निरंतर प्रयासरत भी है। सरकार द्वारा समय समय पर कठोर कानून भी बनाए गए हैं जिनका विवरण निम्न है। पहला, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज गति से गाड़ी चलाना तथा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने जैसे नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर सजा तथा कार्यवाही का प्रावधान रखा गया है। दूसरा, ड्राइवर को सीट बेल्ट तथा हेलमेट लगाना अनिवार्य है। इस कानून में सरकार द्वारा सभी 2 पहिया वाहन चालकों के लिए तथा पीछे बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है और सभी 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है उस पर कड़ी कार्यवाही तथा कठोर दंड का प्रावधान रखा गया है और यही नहीं बल्कि सुरक्षा अभियान चलाकर सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। धन्यवाद। Question number 105, Ms. Kavita. महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि आपकी सरकार ने बुजुर्गों को सही समय पर ओल्ड पेंशन स्कीम देने के लिए क्या कदम उठा रही है। सांसदों, विधायकों के परिवारों को 1 साल का कार्यकाल पूरा करने पर पेंशन मिल जाती है, परंतु महोदया कर्मचारियों को 30-35 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर पेंशन समय पर नहीं मिलती है। पूरे देश में इस कानून को लागू करने के लिए लोग हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं। महोदया, हमारी सरकार ने अभी 3 राज्यों में इस कानून को लागू किया है। पूरे देश में इस कानून को लागू करने के लिए आपकी सरकार की क्या योजना है? Ministry of Pension, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को बताना चाहूंगी
हमारी सरकार ने न्यू पेंशन की स्कीम के साथ और पेंशन की स्कीम को लागू करने वाली है। हमने दोनों स्कीमों के नफा नुकसान का आकलन करने व देश में और पेंशन की स्कीम लागू होने से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले भार का प्रदानसद नीति की कमेटी गठित कर दी है। महोदय विपक्ष जिन तीन राज्यों में योजना लागू करने की बात कर रहा है, महाघोषणा के अलावा इन्होंने कोई भी काम ढंग से नहीं किया है। महोदय हमारी सरकार झूठे वादों की अपेक्षा व्यवहारिक कार्यों में काम करना ज्यादा पसंद करती है। धन्यवाद। Question number 130, Ms. Vedika. Ma'am, through you, I want to ask from Minister of Women and Child Development Ministry. I want to know that we always proclaim that education is only the weapon through which a woman can upgrade herself socially and economically. But in today's time, this statement is relevant to much extent. As you must be aware about the Jharkhand case in which a male teacher exploited the girl student just for the sake of his egoistic satisfaction. And your own words, male education is going to be motivate the girl education be going to emancipation in near future. Thank you. Ministry of Women and Child Development, please. Ma'am, through you, I want to inform that yes, we are aware about the Jharkhand incident, and with a lot of pain and grief, I'm saying that the incident was shocking. But we are working on the measures of women's safety actively, and there are many schemes that are in this direction. Mission Shakti. The objective of Mission Shakti is to provide to all the women and girls, including victims socially, economically, marginalized, vulnerable, group of needs of care and protection. Ujjwala, to prevent the trafficking of women and child for commercial sexual exploitation through social mobilization, involvement of local committees, awareness generation program, general public, discouraged through workshops, seminars, and such events and innovation activities. Thank you. Question number 145 to Mr. Mahendra. महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि देश में चुनाव में सुधार करने के लिए सरकार क्या कर रही है। आप ये नारा देते थे कि एक देश, एक चुनाव, एक विधान व एक संविधान, परंतु आप चुनाव प्रक्रिया में एक भी सुधार नहीं कर पाए हैं। धन्यवाद।